Lesson 8. Miss Rottenmeier has a hard day. Miss Rottenmeier is the housekeeper of the house. She had a difficult day, a day which is not good for her, actually a bad day. So many things happened with her and that made the day a hard day. Children, this chapter is extracted from a very famous novel, Heidi. You might have heard Heidi is the story of a girl of your age, means a girl of 9 to 10 years old, and this novel is composed by Joanna Sapri, means this chapter is taken from the novel Heidi. Okay, this is an extract is taken out from something from the children's novel Heidi by Joanna Sapri. Heidi, a lively means happy little girl, is brought up in the mountains of Switzerland. She lived near the mountains of Switzerland in a small village by her grandfather. She used to live with the grandfather. She likes to live in the countryside. Countryside means a place near the country, outside the country, in the outskirts of country, means the villages which are outside the country, means outside Switzerland, with goats grazing and pine trees rustling, means she enjoys the village life where the goats graze, eat grass, and the pine trees, when they move, they made a rustling sound. However, she is sent to live with a family in the city, far away from all that she loves. Now, she is sent from there to the city life to live with the family where she had to make so many sacrifices, and how she managed there and started living the city life. This is what we are going to study in the chapter. The chapter started when Heidi woke up early in the morning. Puzzled means confused. Heidi बहुत confused है. She lay trying to think how she came to be in this huge white bed. अब वो सोकर उठी है, उसे लग रहा है अरे मैं सुबह सुबह ये कहाँ आ गई हूँ, ये white bed पे मैं कैसे लेटी हूँ. Then all at once, अचानक से हेदी रिमेम्बर्ड, हेदी को याद आया दैट शी इज़ इन अ बिग सिटी नाउ. उसकी यादों में हमेशा यही है कि वो अपने विलेज लाइफ में है और ट्रीज़ को देख रही है और गॉड्स को ग्रेज करते हुए देख रही है. शी हैड टू सी द ब्लू स्काई. इट इज़ हर हैबिट दैट व्हेन शी वेक्स अप शी यूज टू सी द ब्लू स्काई and feel the fresh spring against her face, but the thick curtains drawn across the window shut those away. सुबह सुबह उठकर ताज़ी हवा में सांस लेना, अपने फेस पर उन्हें फील करना, वो उसे अच्छा लगता था. बट यहाँ विलेज लाइफ नहीं है, यहाँ है सिटी लाइफ. थिक कर्टेन्स हैं, विंडोज़ बंद हैं, सो हेदी वो सब इंजॉय नहीं कर पा रही है. जस्ट एट दैट मोमेंट, और उसी समय देयर केम अ नॉक एट द डोर. किसी ने डोर पे खटखटाया. ब्रेकफास्ट इज रेडी अनाउंस द मेड. मेड ने अनाउंस करा कि नाश्ता तैयार है. हेदी ड्रेस्ड क्विकली एंड वेंट टू द डाइनिंग रूम. हेदी नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में ड्रेसअप होकर पहुंची. देयर क्लैरा द डॉटर ऑफ द हाउसकीपर ग्रीटेड हर विद अ फ्रेंडली स्माइल. और वहाँ पर उसे कौन मिला? वहाँ पे उसे मिला क्लैरा. क्लैरा कौन थी? डॉटर ऑफ द हाउसकीपर, वहाँ की हाउसकीपर की बेटी. क्लैरा उससे खूब खुश होकर मिली. आफ्टर ब्रेकफास्ट मिस रॉटनमेयर टोल्ड हेडी टू गो टू द लाइब्रेरी विद क्लैरा एंड वेट फॉर द ट्यूटर. नाश्ते के बाद मिस रॉटनमेयर ने हेडी से कहा कि तुम क्लैरा के साथ लाइब्रेरी चले जाओ और वहाँ पर अपने ट्यूशन टीचर का वेट करो. ट्यूटर इज़ द ट्यूशन टीचर. When the tutor arrived, और जैसे ही ट्यूटर वहाँ पहुँचे, the two girls started studying. वो दोनों बच्चियाँ क्लैरा और हेदी पढ़ना शुरू हो गई. मिस रॉटनमेयर सून हर्ड अ वायलेंट क्रैश. वायलेंट मीन्स बहुत धमाकेदार आवाज़ आई मिस रॉटनमेयर को, फॉलोड बाय शाउट्स, और उसके साथ कुछ चिल्लाने की आवाज़ें भी आईं. शी रश टू द लाइब्रेरी. वो लाइब्रेरी में पहुंची. देन स्टूड हॉरिफाइड. और वो वहाँ घबराई हुई खड़ी थी. सी द पोजिशन ऑफ मिस रॉटनमेयर. शी इज़ इन द लाइब्रेरी नाउ. She rushed to the library, then stood horrified. The table was overturned in the middle of the floor. Overturned means उल्टी पड़ी थी. Center table वहाँ पर उल्टी पड़ी थी. A stream of ink trickled slowly across the room. और ink की धारा बह रही थी और सारी नोटबुक्स पे फैली हुई थी. हेदी वॉज नो वेयर टू बी सीन. हेदी का वहाँ कहीं अता पता नहीं था. दिस इज़ द रूम एंड दिस इज़ द लाइब्रेरी रूम एंड दिस इज़ द सीन हैपेंड देयर.
What happened? cried Miss Rottenmeier. Miss Rottenmeier ने कहा, अरे ये क्या? Everything's covered with ink. It must be Hedy. सब चीज़ों पे इंक गिरी हुई है. ये तो हेदी की हरकत लग रही है. The tutor was gazing helplessly at the ruins. ये सब जो बर्बादी हुई है, ये सब जो कबाड़ा हुआ है, इसको ट्यूटर चुपचाप देख रहा है. Gazing is looking continuously at something helplessly because she cannot do anything. क्लेरा who was secretly enjoying herself. क्लेरा चुपचाप मज़े ले रही थी. उसने कहा yes it was हेदी. हाँ ये हेदी की हरकत है. but she didn't mean to do it. लेकिन उसने जानकर ये नहीं करा है. she must not be punished. हेदी को पनिशमेंट नहीं मिलने चाहिए क्योंकि हेदी ने ये सब जो मैस किया है, ये जो कबाड़ा किया है, इन गिराई है, इसके लिए वो जिम्मेदार तो है पर उसे पनिश नहीं करना चाहिए. शी वॉज इन सच अ हरी टू लुक एट द स्ट्रीट दैट शी कॉट द टेबल क्लॉथ एंड पुल्ड एवरीथिंग डाउन. एक्चुअली हेदी को स्ट्रीट से कुछ आवाज़ आई थी और जिसको देखने के लिए वो एकदम से भागी और उसके साथ साथ टेबल क्लॉथ खिंच गया और जो भी सामान उसके ऊपर रखा था वो सब गिर गया. चिल्ड्रन आई टोल्ड यू हेदी की आदत थी वो रसलिंग ट्रीज और ब्यूटी ऑफ नेचर बहुत इंजॉय करती थी. तो वहाँ से स्ट्रीट से कुछ नेचुरल आवाज़ आई जिससे कि हेदी वहाँ अट्रैक्ट हो गई और इस चक्कर में उसे ये सब हो गया. मिस रॉटनमेयर फाउंड हेदी स्टैंडिंग एट द डोर लुकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट. और मिस रॉटनमेयर ने हेदी को पकड़ लिया. वो कहाँ थी? वो डोर पे खड़ी हुई स्ट्रीट में देख रही थी. हाउ डेयर यू रन अवे फ्रॉम योर लेसन्स लाइक दिस. तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर कैसे भाग सकती हो? किसने कहा? मिस रॉटनमेयर सेड टू हेदी. आई हर्ड द पाइन ट्रीज रसलिंग सैड हेदी. हेदी ने कहा मुझे तो पाइन ट्रीज की आवाज़ें आ रही थी. मैं वो सब देखने के लिए आ गई और उसने बदले में इतना कबाड़ा कर दिया. पाइन ट्रीज? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? पाइन ट्रीज? ये तुम क्या कह रही हो? कम एंड सी द मिसचीफ यू हैव डन. यहाँ आकर देखो तुमने कितनी गंदगी मचाई है. नेवर लेट दिस हैपन अगेन. ये सब फिर कभी ना हुए. Scolded the angry housekeeper. Angry housekeeper ने हेडी से कहा. Who's the angry housekeeper here? Miss Rottenmeier. Lessons were out of question for the rest of the day. उस दिन पढ़ाई तो हो ही नहीं सकती थी. In the afternoon, Clara had to rest for 2 hours. दोपहर में बच्चे 2 घंटे सोते थे तो क्लैरा तो लेट गई. बट हेदी वॉन्टेड टू सी द पाइन ट्रीज. पर आपको हेदी की आदत तो पता ही है, वो विलेज गर्ल है, उसको तो पाइन ट्रीज की आवाज़ सुननी थी. सो शी वेंट टू द टॉल टावर. वो मैडम एक टॉल टावर पर चढ़ गई. शी क्लाइंड अप देयर बट देयर वर ओनली हाउसेस टू बी सीन. वहाँ ऊपर चढ़ गई पर उसने वहाँ जाकर देखा दूर दूर तक पाइन ट्रीज नहीं नजर आ रहे थे, सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स थी. एज शी केम डाउन, और जैसे ही वो नीचे आई, शी सॉ अ लार्ज ग्रे कैट इन द बास्केट. उसने देखा एक बास्केट में बड़ी सी कैट है. She came down, she saw a large grey cat in the basket. Hedy clapped her hands. Hedy खुशी के मारे अपने hands clap करने लगी in delight, in happiness. For in the basket lay 8 furry little kittens. और उस basket में 8 प्यारे प्यारे kittens लेटे हुए थे. और आपको पता है ना बच्चों, हेदी को विलेज लाइफ, नेचुरल ब्यूटी, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब बहुत पसंद थे बिकॉज शी बिलोंग टू अ विलेज. She chose 2 of the kittens and put them in the pocket. हेदी मैडम ने 2 बेबीज उठाए और अपनी पॉकेट में डाल लिए और चुपचाप से वो दोनों किटन्स लेकर अपने घर को वापस चल दी. मिस रॉटनमेयर कॉट हर. जब वो घर लौट रही थी, मिस रॉटनमेयर ने उसे पकड़ लिया. विद अ स्टर्न एक्सप्रेशन शी बिगेन. और उसके चेहरे पर एक गुस्से वाला एक्सप्रेशन था मिस रॉटनमेयर के. टू गो आउट विदाउट परमिशन इज अ पीस ऑफ नॉटीनेस दैट डिजर्व्स पनिशमेंट. तुम बिना परमिशन के घर से बाहर चली गई, अब तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी. यू डिजर्व पनिशमेंट. मियाऊ वॉज द रिप्लाई. और जवाब में आया मियाऊ. दैट इज इनफ. बहुत हो गया. लीव द रूम इमीडिएटली. तुरंत घर से बाहर निकलो, रूम से बाहर निकलो. चोक्ड मिस रॉटनमेयर रेड विद एंगर. मिस रॉटनमेयर ने गुस्से में कहा, अच्छा मैं तुम्हें डांट रही हूँ और तुम मियाओ कह रही हो. तुरंत रूम से बाहर निकलो. एंड अगेन मियाओ. व्हाट डू यू मीन बाय सच रूडनेस. ये क्या मजाक है? क्राइड मिस रॉटनमेयर. मियाओ मियाओ वॉज द रिप्लाई. नाउ हेदी वॉन्टेड टू एक्सप्लेन. हेदी कुछ कहना चाहती है पर वो किटन, छोटी छोटी किटन्स कुछ कहने ही नहीं दे रही हैं. It's not me, it's the kitten.
शी ब्रॉट आउट द किटन्स फ्रॉम हर पॉकेट. अरे ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये तो छोटी सी किटन्स बोल रही हैं. और हेदी ने अपनी पॉकेट में से वो दोनों किटन्स निकाली. व्हाट, किटन्स, श्रीक्ड मिस रॉटनमेयर. मिस रॉटनमेयर चिल्लाई. बच्चों, एक्चुअली में मिस रॉटनमेयर किटन और पेट से बहुत डरती थी. टू द पुअर वुमेन देयर वॉज नथिंग मोर फ्राइटफुल देन अ कैट. वो बेचारी लेडी मिस रॉटनमेयर सबसे ज़्यादा कैट से ही डरती थी. शी स्टैम्प्ड आउट ऑफ द रूम. वो रूम से चिल्लाकर भाग गई. हैविंग बैड इनफ फॉर वन डे. अब उनके साथ पूरे दिन इतनी गड़बड़े हुई हैं और लास्ट में उन्हें कैट भी दिख गई जो जिससे वो बहुत डरती थी. हेदी वॉज लेफ्ट स्टैंडिंग सरप्राइज्ड. हेदी वहीं रह गई खड़ी और हेदी ने सोचा इसमें डरने की क्या बात है. टू हर किटन वर अ सोर्स ऑफ जॉय. उसके लिए किटन्स एक एंजॉयमेंट की चीज़ थी. She could not understand how anyone could be scared of such timid little creatures. हेदी को ये समझ ही नहीं आया कि इतने प्यारे मासूम से जानवरों से कोई कैसे डर सकता है. So children, this is only the extract that we have obtained from Miss Hedi chapter. The title is Miss Rottenmeier had a hard day. अब आपको पता चल गया कि मिस रॉटनमेयर का डिफ़िकल्ट डे क्यों था, क्योंकि उस सुबह से उनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी. थैंक यू.